First question is, suppose it says you have to find the value of sine inverse minus 1 by 2. Find the principal solution of sine inverse minus 1 by 2. What do you do? So sine inverse minus 1 by 2, it will be minus will be outside, minus sine inverse 1 by 2. Then it will be minus pi by 6. That's it. Job is finished. Then similarly, says cos inverse root 3 by 2. Cos inverse root 3 by 2. Cos के टेबल में root 3 by 2 कहां पे होता है प्लीज? So I'll come to know cos inverse root 3 by 2, that will be positive, no problem at all. Cos के टेबल में root 3 by 2 pi by 6 पे ही होता है. Then it says evaluate tan inverse minus root 3. हमने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं. tan inverse minus root 3 मींस ये कौन सा खानदान है? साइन इनवर्स का खानदान है. माइनस का क्या करता है सर? वॉमिट कर देता है. तो माइनस tan इनवर्स रूट 3, tan के टेबल में रूट 3 पाई बाई 3 60 डिग्री पे होता है, तो माइनस पाई बाई 3 आंसर आ गया. सिमिलरली cos इनवर्स माइनस 1 by 2, जैसे ही cos इनवर्स माइनस 1 by 2 आया, मेरे दिमाग में ये चीज आई कि cos इनवर्स माइनस थीटा it must be equal to pi minus cos inverse 1 by 2. pi minus cos inverse 1 by 2. pi की फैमिली है, क्यों? क्योंकि cos की है. तो pi minus cos inverse 1 by 2, cos के टेबल में 1 by 2 pi by 3 पे आता है, तो it will be 2 pi by 3. लिखना चाहो belonging to 0 to pi लिख सकते हो, belonging to minus pi by 2 to pi by 2 लिख सकते हो. सो फर्स्ट एक्सरसाइज सारी की सारी कुछ ऐसी ही है. अगर सपोज 10th क्वेश्चन पे जाऊं, कोसिकेंड इनवर्स माइनस रूट 2, मैं वो कोसिकेंड इनवर्स फैमिली साइन इनवर्स की, माइनस बाहर आ जाएगा. कोसिकेंड के टेबल में रूट 2, साइन के टेबल में 1 by रूट 2 45 डिग्री, minus pi by 4, belonging to minus infinity, sorry, minus pi by 2 to pi by 2 except 0. So अगर यही क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछ लिया जाता, कोसिकेंड इनवर्स माइनस 1 by रूट 2, हमारे दिमाग में आता है सर इसका ये डोमेन होता है, in that case minus 1 by root 2 ये कहीं पे भी नहीं होगा. So we will say not defined. Suppose question is, कहता है tan inverse 1 plus cos inverse minus 1 by 2 plus sin inverse minus 1 by 2. सीधा tan inverse 1 pi by 4, cos inverse minus 1 by 2 pi minus cos inverse 1 by 2 plus minus sin inverse 1 by 2, it will be minus, वॉमिट कर देगा. तो sin inverse 1 by 2 कहां पे आएगा प्लीज चेक कीजिए. जो भी अनम्यूट है चेक कर लीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कीजिए. पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 by 2, साइन इनवर्स माइनस 1 by 2. तो साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1 by 2. देन व्हाट डू यू थिंक क्या बनेगा ये? प्लीज चेक कीजिए, कोई अभी भी आप में से अनम्यूट है. Then it will be pi by 4, pi minus cos inverse 1 by 2, pi minus cos inverse 1 by 2
इट विल बी पाई माइनस कॉस के टेबल में 1/2, कॉस के टेबल में 1/2 कहां पे आता है? plus 2 pi by 3 minus pi by 6. You take an LCM, 12 is the LCM, it will be 3 pi, it will be 8 pi, it will be minus 2 pi. So 9 pi by 12 आंसर आ गया। So सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं जो आप बड़े प्यार से निकाल पाते हैं, and I don't think you'll get any sort of confusion while solving any question in this exercise. This is the first exercise of NCERT. Then come to second exercise. Question is, कहता prove that 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. X belongs to minus 1/2 to 1/2. This topic we have to do. ये भी हमने करना है, लेकिन मैं यहीं पे समझा रहा हूं। आपने x को दोनों में से साइड में से देखना होता है। I'll take the right hand side. Complex side is right hand side. I'll take it to be sin inverse 3x minus 4x cube. मेरे को ऐसा x पुट करना है जिसके सब्स्टिट्यूशन से कोई फॉर्मूला बन के साइन का बाहर आ जाए। तो मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दूं, x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दूं, तो डेफिनेटली इट विल बिकम साइन इनवर्स 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Definitely it will be sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. It will be sin of 3 theta. Sin inverse sin 3 theta will be 3 theta. Theta will be equal to what? That is sin inverse, which is equal to left hand side, and hence the result. That's it. Not a difficult job. जिसको ये मालूम था कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा होता है। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो उसको पता था कि मैं एक्स की जगह पे साइन थीटा डालूंगा तो ये साइन 3 थीटा बन के बाहर निकलेगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक दूसरे खा जाएगा, 3 थीटा विल बी द रिजल्ट। लेकिन ये ख्याल रखना कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1/2 टू 1/2 भी था। सो अभी मैं इस डिटेल में नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैंने आपको ग्राफ सिखाए हैं। बाकी एनसीईआरटी हमें कोई कंपल्शन नहीं करती है कि यू हैव टू गो विद इट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। अब मेरे को मालूम है कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा होता है। जिसको ये फॉर्मूला आता है उसको पता है कि राइट हैंड साइड लूंगा, राइट हैंड साइड लेके पुट x इज इक्वल टू cos थीटा कर दूंगा, पुट x इक्वल टू cos थीटा कर दूंगा, और जैसे ही x को cos थीटा डालूंगा ये रिजल्ट आ जाएगा। Now, similarly, tan inverse 2/11, tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 1/2. This is the question. Now what to do? What I'll do? हमने किया हुआ है यार, हम पहले चेक करेंगे a कितना है 2/11, b कितना है 7/24, a into b 2/11 into 7/24 that is equal to less than 1. तो जब a b less than 1 होता है तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। और मेरे ख्याल से हमने क्वेश्चन किया भी था, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये रिजल्ट बन गया था
ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। और जहां तक मेरे को याद है ये कुछ ऐसा आया था tan इनवर्स 125/250 और ये tan इनवर्स 1/2 आ गया विच इज इक्वल टू RHS। सो हमने ये क्वेश्चन आई थिंक इस तरीके से बहुत इजीली प्रूव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal to tan inverse 31/17। दिस इज द क्वेश्चन। देखो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, वो क्या कि सर अगर ये ऐसा होता tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A होता, अलग होता ना, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B तुम लगाए थे फॉर्मूला, तो क्या बनता सर tan इनवर्स A प्लस A अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर। सर ये बन जाता tan इनवर्स 2A अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर। तो ये क्या चीज बनती, ये बनती सर 2 tan इनवर्स A अगर A स्क्वायर लेस देन 1 है। तो 2 tan इनवर्स A इक्वल टू tan इनवर्स 2A अपॉन 1 माइनस A स्क्वायर। वैसे भी ये फॉर्मूला है, अगर आपके पास कभी भी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर आता है, हमें ये मालूम है कि अगर मैं पुट x इक्वल टू tan थीटा करूंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये हर एक बंदे को पता है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सर ये कहीं गलती से tan 2 थीटा तो नहीं होता? वही होता है बेटा, tan इनवर्स tan को खा जाता है, क्या बच जाता है 2 थीटा। अच्छा थीटा की वैल्यू क्या होती है सर, tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, दैट्स इट। सो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू भी आपको मालूम है। अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो, अगर खोलना चाहो तो इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, दो बार लिख के तब भी यही फॉर्मूला बनेगा, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला दिमाग में बिठा लीजिए, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। दिस विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये क्या हो जाएगा 3/4, उल्टा कर दो, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देन क्या ऑब्जर्व किया सर, a इंटू बी, जो a इंटू बी है 4/3 इंटू 1/7 लेस देन 1 है, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21, 21 माइनस 4/21, ये कट गया, यू विल गेट tan इनवर्स 31/17 विच इज इक्वल टू RHS। सो किसी भी तरीके से आप रिजल्ट बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन कि आपकी कंडीशन क्या थी। तो ये आपके सामने है रिजल्ट। 2 tan इनवर्स थीटा, एक नई चीज जरूर हमने सीखी कि जब भी कभी 2 tan इनवर्स x आएगा, आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर लिख सकते हो। ये वैसे हमने अभी सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। नाउ फिर हमने क्वेश्चन किए थे सिंप्लीफिकेशन के। सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से कराया था कि अगर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स है, कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो x नॉट इक्वल टू 0। अच्छा आपको एक चीज समझाई गई थी कि जब भी कभी कुछ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के नाम पे आए तो पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा
या a cot थीटा, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। आपकी नीड क्या है। मैं क्या करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1 sin थीटा, 1 tan थीटा, सॉरी। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan के थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ये क्या बन जाएगा सर, tan इनवर्स 1 प्लस tan के थीटा अंडर रूट सीकेंड थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा बन जाएगा। अगर यही मैं कंपटीशन में बात करता तो इसका मॉड लेता, फिर डिसाइड करता कि भाई कहां पे क्या है। एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती। सीकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इट विल बी tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, इट विल बी साइन थीटा। कुछ ऐसा आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इट विल बी tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, इट विल बी tan थीटा बाय 2। तो tan इनवर्स tan चला गया, 1 बाय 2 थीटा आ गया। इट विल बी 1 बाय 2 थीटा, थीटा क्या, व्हाट इज थीटा, दैट इज tan इनवर्स x। So 1 by 2 tan inverse x is the required result. 1 minus 1 upon x square minus 1 है। अब मेरे को मालूम है x square minus a square होगा। tan inverse 1 upon under root of secant square theta minus 1 1 by this will be tan theta। मॉड होना चाहिए था, आई डोंट रिक्वायर। क्या बन गया सर, ये cot थीटा बन गया। ओके, cot को tan में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं सर, इसको tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, व्हाट इज थीटा, दैट इज सीकेंड इनवर्स x। अब ये आप पे डिपेंड करता है, किसने सिंप्लीफाई कहा, किसने प्रूव दैट कहा। अगर तो इसने प्रूव दैट में ये कहा कि tan इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x, तो फिर तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स x लिख देना। क्योंकि हमें मालूम है आइडेंटिटी होती है सीकेंट इनवर्स थीटा प्लस कोसेकेंट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। या दूसरे तरीके से भी चल सकते थे, जब उसे कोसेकेंट चाहिए था ना, तो आप पुट भी ऐसे कर सकते थे, पुट x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। फिर क्या होता, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan इनवर्स 1 upon cosecant square theta minus 1, it will be cot theta, and 1 by cot theta is sir tan theta. Tan inverse of tan theta is theta. So what is theta? That is cosecant inverse x. That's it. Job is finished. चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, tan इनवर्स के अंदर चाहे cot बन के बाहर आए, चाहे tan इनवर्स के अंदर tan theta बन के बाहर आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों तरफ से आंसर आ जाते हैं। Now question is, कहता है tan इनवर्स 1 minus cos x 1 plus cos x, this is tan inverse this। ठीक है जी। नाउ व्हाट टू डू, वैसे x लेस देन पाई दे रखा। अच्छा, अगर सॉल्यूशन निकालें तो क्या होगा, tan इनवर्स सर 1 माइनस cos x, पक्की बात 2 sin स्क्वायर x बाय 2 रहा होगा। सर 1 प्लस cos x, सर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 रहा होगा।
tan इनवर्स 2 कट गया, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x/2 आ गया। सर कहीं ना कहीं ये tan x/2 का मॉड बन गया होगा, वैसे थोड़ी सी शर्म कर लेना, अगर जरूरत पड़े तो लगा देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। x लेस देन पाई है तो x/2 लेस देन पाई/2 होगा। x/2 लेस देन पाई/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2 आ जाएगा। ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, तो tan इनवर्स tan x/2, तो tan इनवर्स tan को खा गया, x/2 आंसर आ गया। ऐसे ही आपने ये भी क्वेश्चन देखे थे, ये सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। ये भी क्वेश्चन था tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, 0 लेस देन x लेस देन पाई। एक चीज मेरी याद रखना, जब भी कभी बाहर tan इनवर्स पड़ा होता है ना, जब भी कभी बाहर tan इनवर्स पड़ा होता है, यहां पे 1 बनाना होता है। ये तीसरी पोजीशन पे 1 बनाना है, जो कुछ मर्जी पढ़ाओ, जो कुछ मर्जी पढ़ाओ, यहां पे 1 बनाओगे। यहां पे 1 बनाने का तरीका क्या होता है, जो मर्जी है यहां से इस चीज से डिवाइड कर दो पूरे को। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ये बन जाएगा 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। इसका मतलब सर tan इनवर्स ये tan π/4 माइनस x रहा होगा। यस, tan इनवर्स tan π/4 माइनस x। अच्छा, tan इनवर्स tan को खा गया, सर ये π/4 माइनस x बना होगा। यस, बस ये सिंप्लीफाई हो गया आंसर आ गया। हम अभी कोई क्वेश्चंस करेंगे जिसके यहाँ पे काफी कुछ पड़ा होता है, वो चीज हमेशा याद रखना, मैं हमेशा जो चीज यहां पड़ी होगी ना, इसी से डिवाइड करूंगा अगर बाहर tan इनवर्स पड़ा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 1 बनाना होता है हमेशा। क्योंकि जब भी कभी tan इनवर्स आपने देखा हो a प्लस बी 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a माइनस बी 1 प्लस ए बी, ऐसे ही tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। मतलब मेरे को ये श्योर है कि सबका यहाँ पे 1 होता है, तो जो भी चीज पड़ी होगी यहाँ पे, आई विल डिवाइड इट बाय दैट क्वांटिटी एंड डेफिनेटली आई विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। एनी डाउट? ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं बेटा, ये ख्याल रख लेना। नाउ देखिए, अब सपोज सिमिलर क्वेश्चन, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब a क्यूब 3a x स्क्वायर, कहता है a ग्रेटर देन 0 है, x माइनस a/√2 तो a/√3 है, वो बाद की बात है। अभी मैंने आपको समझाया कि सर जो चीज मर्जी यहाँ पे पड़ी है, इसको रिमूव करना, इसको रिमूव करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन बिटवीन बाय a क्यूब, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3x/a माइनस x/a का क्यूब 1 माइनस 3x/a का होल स्क्वायर। इसको भी a क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसको भी a क्यूब से डिवाइड कर दिया, यहां पे 1 बनाया। कुछ कुछ मेरे को दिखने लग पड़ा कि अगर मैं x/a को tan थीटा पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा विल बी tan 3 थीटा। tan इनवर्स tan को खा गया, 3 थीटा आ गया। 3 थीटा मींस थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स x/a। सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई आपके पास
This is the simplified form and simplest result to prove this. फिर हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। कहता है सर इवेल्युएट tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। मैंने कहा कोई मुश्किल नहीं है सर, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन के टेबल में 1/2, साइन के टेबल में 1/2 कहां पे आता है सर? π/6 पे आता है। अच्छा, 2 cos 2 into π/6 will become π/3। ओके, आराम आराम से 2 cos π/3 cos 60 कितना होता है सर? 1/2 होता है। इसका मतलब tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 क्या होता है सर? π/4 होता है। ये तो बहुत छोटा सा पूछा उसने, हमने तो एक बहुत बड़ा वाला भी क्वेश्चन किया हुआ है इस पे बेस्ड। सो कुछ इस तरीके से इसने फाइंड द वैल्यू कहा था, तो हमने वैल्यू निकाल दी। नाउ इस क्वेश्चन को देखना, ये हमने अभी करना है। वैसे tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। दिस टॉपिक इज स्टिल पेंडिंग, ये हमने अभी टॉपिक करना है। कहता है इवेल्युएट या सिंप्लीफाई। यहां पे देखो, अगर मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मेरे को याद है ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता था। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था। सिमिलरली अगर मैं पुट y इज इक्वल टू tan फाई पुट कर देता हूं तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू cos 2 फाई होता था। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला ये होता था, sin 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला ये होता था। +1 की बुक्स को उठा के जरूर देखना। तो आई विल गेट tan 1/2 sin इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। This will be tan 1/2 sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan theta, that is equal to sin inverse sin 2 theta plus cos inverse ये क्या बन जाएगा? cos 2 फाई। अच्छा, tan of 1/2 sin वर्स sin को खा गया 2 थीटा प्लस 2 फाई। 1/2 बाहर पड़ा ही हुआ है, क्या आ जाएगा? tan थीटा प्लस फाई। और tan थीटा प्लस फाई, भाई tan थीटा प्लस फाई, मेरा तो आंसर x और y में है। मैं थीटा और फाई क्या करूंगा? थीटा और फाई तो मेरा अपना रिजल्ट था, तो मैंने tan a प्लस b का फॉर्म लगा दिया, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। अच्छा, तो सर व्हाट इज tan थीटा? कहता सर x। व्हाट इज tan फाई? दैट इज y। 1 माइनस xy। सो इन दिस वे विल, चलिए नाउ नाउ क्वेश्चन इज, कहता साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन हमने उस दिन किया था। मैंने कहा था करना क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अच्छा, इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। तो मेरे को ये चीज मालूम है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 कब बनेगा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 कब बनेगा, जब थीटा सेम होगा। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1/5। नाउ ये सॉल्व करता है, अभी कल ही किया हमने क्वेश्चन, x-1 अपॉन x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 अपॉन x+2 इज इक्वल टू π/4। अभी कल हमने क्वेश्चन किया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। मैंने कहा था आपने खुद ही लगा देना है, x-1 x-2 x+1 x+2 1 माइनस x-1 x-2 x+1 x+2 इज इक्वल टू π/4। होगा क्या, tan इनवर्स उधर चल जाएगा, tan π/4 1 हो जाएगा। इट विल बी x-1 x+2 x+1 x-2 अपॉन x² -4 माइनस x² -1। याद है, सिंप्लीफाई करते थे। मैंने कहा था बस एक चीज ख्याल रखना, वो क्या, a इंटू बी, कंडीशन जरूर याद रखना, x-1 अपॉन x-2 x+1 अपॉन x+2 लेस देन 1। ये कंडीशन के साथ अगर आप चलेंगे तो आपका रिजल्ट जरूर बनेगा। यहां से दो वैल्यूज आएंगी, इस कंडीशन में देखना है कि क्या वो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। आप कल के नोट चेक कीजिए, अभी ये कल ही हमने क्वेश्चन किया है मेरे ख्याल से। नाउ कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से, जब हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के ग्राफ्स किए थे, तो मैंने कहा था ये चीजें दिमाग में रख के चलना, छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं। कहता है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, ना साइन इनवर्स की आउटपुट जो है वो -π/2 से π/2 में हो सकती है। ये पॉजिटिव आता है तो आपने कैसे देखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। अगर ये 2π/3 की वैल्यू है तो इट विल बी पाई माइनस 2π/3, आंसर विल बी π/3 बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। अगर ग्राफ से देखोगे तो, अगर ग्राफ से ना देखो तो कैसे करोगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन 2π/3 सर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, एड शुगर पॉजिटिव होता है। इसका मतलब सर इसको मैं साइन पाई माइनस π/3, 2π/3 को पाई माइनस π/3, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स सर साइन π/3, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, +1 की ट्रिग्नोमेट्री है, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन वर्स साइन को खा गया, सॉरी ये π/3 आंसर आ गया। जैसे मर्जी करो, +2 यूज करो या +1 यूज करो, रिजल्ट विल बी सेम। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है। अगर मैं +1 आती है मेरे को अच्छे तरीके से, ग्राफ नहीं भी आता, मैं कहता हूं कोई समस्या नहीं सर। आप ये देखो कि 7π/6 पाई से बड़ा है कि पाई से छोटा है, सर पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। एड शुगर टू कॉफी, मतलब यहां पे है, यस यहां पे है, मतलब नेगेटिव है, यस नेगेटिव है। इसका मतलब सर कॉस इनवर्स को कॉस पाई प्लस π/6 लिखा जा सकता है नेगेटिव वैल्यू के लिए। इसका मतलब मेरे को उसको पाई माइनस बनाना पड़ेगा, पाई माइनस बनाना पड़ेगा। सर इसको मैं 2π माइनस 5π/6 लिख सकता हूं। सर ये कौन से क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो गया, ये थर्ड से सेकंड में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरा डोमेन जो होता था वो 0 से पाई होता था।
मेरा डोमेन जो होता था वो 0 से पाई। अगर कॉस इनवर्स पॉजिटिव है तो 0 से 90, नेगेटिव है तो π/2 से आगे। तो मैंने उसको थर्ड क्वाड्रेंट की जगह सेकंड में शिफ्ट कर दिया। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है। तो सर ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 π/6 आ जाता है। आपको बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, सर ये क्या कर दिया आपने। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूं। देखिए जो वैल्यू cos 7 π/6 की होती है ना, वही वैल्यू cos 5 π/6 की होती है। क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये cos 180 प्लस थीटा होता है, cos पाई प्लस थीटा ये भी माइनस cos थीटा होता है, cos पाई माइनस थीटा ये भी माइनस cos थीटा होता है। तो जब यहां पे वैल्यू आती है हम यहां फेंक देते हैं, यहां पे वैल्यू आती है हम यहां फेंक देते हैं। और अगर आपको ग्राफिकली याद है, जैसे मैंने ग्राफ में समझाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यू ये है, जो भी वैल्यू ये है, ये 5 π/6 रिजल्ट देगी। तो आप उस ग्राफ में से वैल्यू देख लेना, जब एडजस्ट करोगे तो अपने आप ही 5 π/6 आ जाएगा। नाउ इसके बाद जो पेपर में मैंने कहा था क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में, वो मैंने आपको समझाया था या प्रूव के आते हैं या सॉल्व के आते हैं। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। जर्नली tan इनवर्स वाले रिजल्ट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, कहता है सर cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 is equal to cos inverse 33/65, cos inverse 33/65, कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए। अब एक तरीका तो मैंने आपको समझाया था कि व्हाट टू डू। सर सारा tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, सब कुछ tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व इट। मैंने कहा था, लेकिन बोर्ड क्या कहता है, बोर्ड कहता है लेट cos इनवर्स 4/5 is equal to a, cos इनवर्स 12/13 is equal to b। सर cos ऑफ a 4/5 हो जाएगा, सर cos ऑफ b 12/13 हो जाएगा। यस, ये cos a आ गया, ये cos b आ गया। इसका नाम a है, इसका नाम b है। ये यहां पे cos इनवर्स है, ये यहां से इधर जंप करके आएगा। ये ख्याल रखना, खोलना क्या है, फॉर्मूला कौन सा खोलना है। सर इसका नाम a रखा है, इसका नाम b रखा है, तो cos इनवर्स का इधर आगे cos बनेगा, तो सर ये cos a प्लस b बनेगा। यस, ये cos a प्लस b बनेगा। अच्छा देन सर ये cos a cos b माइनस sin a sin b बनेगा। cos a प्लस b का फॉर्मूला आना चाहिए, +1 में पढ़ा, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। कोसाइन, कोसाइन मतलब को पुत्र, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बनाया था। इसका मतलब cos a प्लस b कैन बी रिटन एज cos a 4/5, cos b 12/13, sin a यहां से निकाल लो sin a, सर 3/5 होगा। ट्रायंगल बना के देख लो, पता ही है आपको 3 4 5, ये 5 12 13, तो व्हाट इज sin b 5/13। श्योर, it will be 3/5 into 5/13। कटिंग नहीं करनी क्योंकि एलसीएम सेम रह जाता है। यहां से कट रहा है 5 5, मैंने काटा नहीं। 4 into 12 48 minus 15, it will be 48 minus 15 is 33/65। अपने आप बनेगा cos a plus b 33/65, तो a plus b cos इनवर्स 33/65। लेकिन एक चीज दिमाग में रख लेना, बाई चांस ये आंसर ना बने, हो भी सकता है कि सर आंसर ना बने। cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65।
65। हो सकता है कि ये आंसर ना बने। अंडर दैट कंडीशन बिल्कुल नहीं सोचना, सीधा tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देना हर एक चीज को। इस चीज को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। आपने 1 मिनट लगाना tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हुए, सोचना नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि फिर पता क्या है, मैंने सिर्फ आपको अगर याद हो, मैंने इसके फॉर्मूले नहीं कराए, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। ये मैं कल लिखवाऊंगा जरूर आपको, लेकिन मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी हमें अलाउ नहीं करती है। तो मैंने सिर्फ आपको एक चीज रिक्वेस्ट की थी कि पुत्र ये सिर्फ सोते सोते याद कर लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। दूसरी चीज मैंने कहा था सर पाई प्लस होता है, तीसरी चीज मैंने कहा था सर माइनस पाई प्लस होता है। बस यही चीज मैंने कहा था, एक याद कर लेना। आपने गंगा नहा लिया, समझ लो अगर यही पास हो गया तो। क्यों? ये कब है? अगर x इंटू वाई लेस देन 1 है। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, एक्स लेस देन 0 है, वाई लेस देन 0। बस ये चीज अगर याद कर ली तो ऐसे क्वेश्चंस में प्रूव दैट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो हमने यूज ही नहीं करना होता, हमने तो फॉर्मूला वैसे ए और बी करके निकालना। लेकिन बाई चांस फंस गए तो क्या करोगे? फंस गए तो फिर हम सोचेंगे कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से निकालना। नाउ सिमिलरली अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा है, cos इनवर्स 12/13, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65, sin इनवर्स 56/65। देन वंस अगेन वही चीज, लेट cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू a, sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू b। ये बन गया cos a 12/13 है, 12 ये 13 ये तो 5 ये, तो sin a क्या होगा सर? 5/13 होगा। ये b ले लीजिए, sin b 3/5 हो जाएगा। 3/5 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 4, ये sin b हो जाएगा। ओके, देन दिस इज sin a, दिस इज sin b। नाउ व्हाट यू रिक्वायर्ड सर, ये a प्लस b था, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b। sin a प्लस b, सर ये अल्टरनेटिंग फॉर्मूला होता है, प्लस वन में पढ़ा हुआ आपने, sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। दिस इंप्लाइज sin a प्लस b, sin a 5/13, cos b, cos b, sir cos b is 4/5, cos a 12/13, sin b sir 3/5, 20/65, 36/65। सर ये 56/65, यस। इसका मतलब sin a प्लस बी 56/65, तो a प्लस बी साइन इनवर्स 56/65। तो a प्लस बी की, a और b की वैल्यू डाल दो एंड प्रूव, ये आपका रिजल्ट प्रूव हो जाता है। सेम इसके बाद tan इनवर्स वाले 4 में है, कोई दो दो को ब्रैकेट में ले लीजिए एंड यू विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सिमिलरली इसके बाद ये क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन है ऐसे एनसीईआरटी में सेम, सो मैं एक ले रहा हूं। नाउ क्वेश्चन इज, कहता सपोज कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स
प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, that is equal to x by 2. x belongs to 0 to pi by 4. ये ख्याल रखना। अब मैंने कहा था चाहे यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स हो, चाहे 1 प्लस कॉस 2 एक्स हो, चाहे 1 प्लस एक्स हो, बाहर tan इनवर्स या कॉट इनवर्स कुछ भी पड़ा हो सकता है। ये कॉट इनवर्स पड़ा हुआ। कैसे समझाया गया था? 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू सर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। यहां पे भी ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है। सेम यहां पे भी। तो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा सर? साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ऊपर भी ऐसे लिख दो, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे भी, नीचे एक बार दोबारा लिख देते हैं। देन यू नो इट वेरी वेल, अंडर रूट में होल स्क्वायर मॉड बनेगा, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसको तो फर्क ही नहीं है, प्लस का ही है। ये जरूर मोड में लिख लेना, क्योंकि पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। प्लस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव लो होल्ड कर जाएगा। यहाँ पे सेन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का मॉड लिख लेना। अब आ जाओ एक्स की वैल्यू पे। सर एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 है। एक्स की वैल्यू कहां पे है? 0 से पाई बाय 4। अगर x 0 से पाई बाय 4 है तो x बाय 2 जो होगा वो 0 से पाई बाय 8 होगा, 22.5 डिग्री तक। और 22.5 डिग्री तक आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 45 डिग्री तक cos x जो होता है वो ऊपर खेलता है, तो इसका मतलब cos x बाय 2 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब cot इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 लिख देना। ध्यान से देखो, cos का ग्राफ ऊपर है साइन से, तो cos बड़ा होगा। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट गया, यहां पे भी साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कट गया। इट विल बी cot इनवर्स 2 cos x बाई 2 अपॉन, दोनों जगह साइन कैसे कट गया अभी? नीचे माइनस था यार। यस 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 सर, नीचे माइनस है सर, नीचे माइनस है, यहाँ माइनस है। इट विल बी 2 साइन एक्स बाई 2, कॉस कटेगा, 2 कट जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, प्यारा सा एक्स बाई 2 बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख देते ना, तो ये tan एक्स बाई 2 बन जाता। और tan एक्स बाई 2 में क्या करते? फिर आप कॉट में कन्वर्ट करते। फिर क्या करते सर? 90 माइनस एक्स बाई 2 आता, फिर आंसर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आता, और आंसर आपका मैच नहीं करता। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा गेम दिमाग में रख के चलना कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड की कंडीशन दिमाग में जरूर रहनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। ये चीज ख्याल रख के चलना प्लीज।